Hello students, welcome back to my channel Study with Jaggi. In the last video, we have done the poem Try Again written by the poet Eliza Cook. And if you remember, in the poem, it inspires, encourages students to view challenges as stepping stones to success. The poem leaves a powerful message or powerful impact on the readers and inspiring them to achieve their best goal in life by giving the character beta in the poem King Bruce of Scotland and the Spider. Basically, it is the story of King Bruce of Scotland, and when he sees a spider trying again and again, and in the 10th attempt it climbs to its cobweb. Okay beta? So beta, today we will do the book exercises, okay, of the poem Try Again. So come on page number 19. Let us discuss. First question is कंप्लीट दी समरी ऑफ द पोएम. बेटा ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, आपको समरी ऑलरेडी दी हुई है. यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. Summary of the poem by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below. Share your answers with the teacher and example has been given. Okay beta, so let's start. The poem written in a narrative style. ये आपको कहानी की तरह लग रही थी ना, कोई नरेट कर रहा था. So this poem is written in a narrative style. Tells the story of King Bruce of Scotland, who was feeling, what would be the answer? Low. वो अपने आप को low feel कर रहा था. He was not feeling good. After failing multiple times to achieve something. Dash for his people. बताइए what would be the answer? He wanted to achieve something great. वो कुछ great करना चाहता था achieve for his people. In a moment of dash, he observed a spider trying to reach its web. So what would be the answer? In a moment of despair, जब वो परेशान होता है, दुखी होता है. Despair, he observed a spider trying to reach its web high above. The spider dashed every time. What he did? ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना वो, क्लाइम करने की, तो mounted every time it fell after getting close to its goal. It made 9. कितनी बार कोशिश की थी उसने? Attempts. 9 attempts. उसने 9 attempts तो कर ली थी, but in the 10th attempt it got successful attempts and finally succeeded. The king said that the spider had conquered. उसने वो अचीव कर लिया था, जैसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट वॉज कॉन्कर्ड. सो वो उसने, जो स्पाइडर था उसने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, वॉट, टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. एंड सो वुड ही, सो वो भी कर लेगा. इफ स्पाइडर कैन डू इन द 10th अटेम्प्ट, सो किंग वॉज थिंकिंग व्हाई कांट आई डू अगेन, वंस मोर आई शुड ट्राई. इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव. दैट वो भी अब करेगा कोशिश. When he tried this time, जब वो दोबारा ट्राई करता है, लास्ट टाइम, he ultimately succeeded. So बेटा अगर आपको सेंट्रल आइडिया आ जाए, ठीक है, तो आप मैसेज बता सकते हो कि what message do you get, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, ठीक है. सो यू गेट एनकरेज्ड, ठीक है. अगर फेलियर आते भी हैं तो दैट वुड श्योरली लीड टू योर सक्सेस. सो यू शुड keep trying again and again. Some people, some students
easily achieve in third or fourth attempt, and some might not. They would try for several times, maybe eighth, ninth attempt. Okay, so this was the summary of the poem. Okay, you can learn it also. Beta, now see second, complete the following sentences suitably. ठीक है, हमें appropriate answer लिखना है इसका. We can say that the poet uses the narrative style. जब भी बेटा इस पोएम के बारे में आपको सेंट्रल आइडिया या थीम या व्हाट मैसेज, तो आपने ये वर्ड जरूर लिख देना है कि इट इज़ ऑफ व्हाट टाइप या व्हाट स्टाइल. इट इज़ नरेटिव स्टाइल. ठीक है, बिकॉज क्यों है वो नरेटिव स्टाइल बताइए. बिकॉज द पोएम टेल्स अ स्टोरी. टेल्स अ स्टोरी किसके बारे में. अबाउट किंग ब्रूस एंड the spider. Okay, in a detailed manner. Second is the central idea of the poem. So what is the central idea of the poem? Means what is the theme, you can say what this poem wants to give message to you. So we can write main is perseverance and determination. Determination. Okay. And if you feel that these words are difficult to write, then you can even write this. Never giving up despite, जितनी बार मर्जी ट्राई करना पड़े जब तक आप सक्सेस नहीं होते. ठीक है, इन योर लाइफ यू गेट despite repeated, as spider did, repeated failures. चाहे जितनी बार मर्जी फेलियर्स हो जाए लाइफ में, आपको गिव अप नहीं करना. ओके, एज अभी हम कैसे बोल सकते हैं, एज शोन थ्रू द स्पाइडर्स efforts and किंग ब्रूस, जो किंग ब्रूस था स्कॉटलैंड का. ठीक है, उसने क्या रियलाइज किया, दैट नॉट टू गिव अप एंड ट्राई इट वंस अगेन. रियलाइजेशन. ओके बेटा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज पिक 3 examples from the poem for each of the following lines that describe the spider's efforts. So वो lines बतानी है जिससे हमें ये पता लग सकता है कि क्या या what type of efforts जो स्पाइडर ने किए. ठीक है, तो कौन सी लाइन हो सकती है बेटा. कम ऑन पेज नंबर 18. देखिए बेटा टॉप पे, it soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor. ठीक है, तो एक लाइन तो यही हो गई. हम यहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं ना, थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट का पहला. ठीक है, एक लाइन है जो डिस्क्राइब कर रही है स्पाइडर के एफर्ट्स को. ठीक है, दूसरी कौन सी हो सकती है. अब देखिए यहाँ पे अगेन इट फेल एंड swung below
बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। ये भी थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसका फर्स्ट आंसर। थर्ड कौन सी लाइन हो सकती है? देखिए, आइए यहाँ पे, देखिए देखिए बेटा, स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गोड। सो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, नाउ कम्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था ग्रेड 6 में भी एलिट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे। एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ओके, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। अब एलिट्रेशन बताइए कहाँ देख सकते हैं? ढूंढिए पोएम में, इफ यू कैन फाइंड। देखिए बेटा, अगर आपको दिखता है कहीं। एक तो मुझे तो मिल गया बेटा, ट्राई इट वंस। एक तो ये हो गया, यू कैन राइट हेयर ब्रावो ब्रावो। यहाँ पे बेटा, ठीक है, और फास्ट नाउ स्लो। ओके, नाउ फास्ट नाउ स्लो। ठीक है, नेक्स्ट foolish thing will strive। बेटा यहाँ पे ब्रावो ब्रावो में बी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। इन दिस फास्ट एंड नाउ स्लो, इसमें बेटा एस साउंड इन स्लो एंड एफ साउंड इन fast, then again here the repetition of H sound strive, ठीक है, in foolish F sound F। ओके, तो ये आपके एलिट्रेशन हो गए। नाउ फोर्थ पार्ट पे आइए। Why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? ठीक है, तो मतलब जो पोएट है वो इन फ्रेजेस को क्यों यूज़ कर रहा है? ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली एंड स्टेडली, अप अप। तो ये जो पोएट है ये इसलिए रिपीट कर रहा है, ठीक है, टू एम्फेसाइज, टू हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, टू एम्फेसाइज। किस पे इंपॉर्टेंस देना चाहता है? टू एम्फेसाइज परसिस्टेंस। बेटा देखो, सिंपल बात है, जिन बच्चों को ये वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं अभी यूज़ करने के लिए, ये हमें सीखने तो है ही है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लास ओनली। परसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने यूज़ किया था परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन, तो उसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं नेवर गिव अप डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टू एम्फेसाइज परसिस्टेंस, कि आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, फेलियर देख के भागना नहीं है अपने सिचुएशन से, ठीक है।
परसिस्टेंस, देखो अगेन दोबारा वो वर्ड आ गया, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट. ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट द पोएट मेक्स द मैसेज ऑफ never giving up, of never giving up. Okay, सो बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए fill in the blanks by choosing the correct answer from within the brackets. So ये राइम स्कीम पूछ रहे हैं पोएम की. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ये बेटा आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. आपको लाइंस दी होंगी एक्सट्रैक्ट की, तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड है. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी राइम स्कीम है. AABB, AABB. ठीक है, ओके बेटा. सो सेकेंड, ब्रेवो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन हेयर. ओके, the poet uses it was and it's for the sake of. Why it was using? For the sake of contraction. Okay, देख लीजिए बेटा एक बार सारा. ओके, बेटा नाउ कम ऑन पेज नंबर 26th क्वेश्चन. The spider's climbing is compared to King Bruce's own struggle. Okay, just as the spider repeatedly attempts to reach its web, Bruce is trying to achieve a great deed for his people. This poetic device is called metaphor. It strengthens the poem's message about perseverance. Keep trying till we succeed. Okay, so बेटा जो मेटाफर है इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, दैट मेक्स द पोएम मोर, we can say, interesting, in which it gives a message through a metaphor using in that poem. Like, see, is being a figure of speech that involves an implied comparison between two unlike things. Now see, King Bruce and spider we are comparing. Unlike things without using. अब हमें तो ये पता लग गया ना पोएम में भी कि हम जो स्पाइडर के जो फेलियर्स थे वो हम किंग ब्रूस के फेलियर्स से कंपेयर कर रहे हैं, बट उसमें लाइक और एज यूज नहीं किया. ठीक है, विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स लाइक और एज इन बिटवीन सम वर्ड्स और एज. ठीक है, इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर. हमें ऑटोमेटिकली हमने अंदाजा लगा लिया कि जो किंग है ब्रूस, ठीक है, उसके फेलियर्स को हमने स्पाइडर से कंपेयर कर लिया. हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज. अब हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज मीन्स जो किंग ब्रूस what he was going through, those failures that he was not able to do, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा था अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको खुश करने के लिए. वैसे ही स्पाइडर अपने कोव वेब तक जाने के लिए कितनी बार 9 times it fell down and in the 10th attempt वो सक्सेसफुल होता है वहां पहुंचने के लिए. Highlighting similarities between them to add deeper meaning or understanding. ठीक है, अब कह रहे read the following sentence and identify metaphors and similes.
अब सिमिलीज में क्या होता है, वहां पे लाइक और एज वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि मेटाफर में लाइक और एज वर्ड नहीं यूज होते, तो ये तो बहुत इजी हो गया ना हमारे लिए सॉल्व करना। अब जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो जल्दी से देखेंगे, यहाँ पे एज है, ठीक है, इट मीन्स ये मेटाफर तो होगा नहीं। ठीक है, ये सिमली होगा, क्योंकि सिमली में होता है ही रैन एज फास्ट एज अ चीता। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें है कि जो मेटाफर के लिए आपने एम लिखना है कैपिटल में और सिमिली के लिए एस कैपिटल। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड को एज ए स्टेज, है ना, तो बट यहाँ पे ना ही वर्ड एज है ना ही लाइक है, तो इट मीन्स इट्स ऑटोमेटिकली मेटाफर। द नाइट वॉज अगेन एज डार्क एज कोल, तो ये सिमली हो गई। ही सैंग, लाइक आ गया वर्ड, अगेन सिमली। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, यहाँ पे ना ही एज यूज हुआ है, ना ही लाइक, ना ही एज और एज। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होगा, ये होगा मेटाफर। द क्लासरूम वॉज अ जू, अब ये भी बेटा क्या होगा, मेटाफर, बिकॉज यहाँ पे भी जो कंपैरिजन वर्ड्स से लाइक और एज वो नहीं यूज हुए, और क्लासरूम को जू से कंपेयर किया, वो हमें सेंटेंस रीड करके ही पता लग गया। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, लाइक अगेन सिमिली। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, तो ये अगेन सिमिली। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जो लेक है उसको किससे कंपेयर किया, मिरर से, बट यहाँ पे वो वर्ड्स यूज नहीं किए एज और लाइक, तो ये क्या हो गया आपका मेटाफर। मेटाफर की स्पेलिंग याद कर लेना बेटा, ठीक है। नाउ सी बेटा नेक्स्ट, read the following sentences and transform the similes to metaphor। मतलब आपने सिमिली से मेटाफर में कंपेयर क्या करना है, आपने ट्रांसफॉर्म करने हैं सेंटेंसेस को। एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज, और मेटाफर्स को सिमिलीज में करना है। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए एग्जाम्पल्स बेटा। नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री, ठीक है, लाइक वर्ड है, मतलब सिमिली में हमें मेटाफर में करना है। नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ ए माइटी ट्री, तो उसको उसमें मेटाफर में कन्वर्ट कर दिया, कंपेयर भी कर दिया, और वो एज और लाइक वर्ड भी यूज नहीं किया। हिज करेज वॉज अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिमिली में। हिज करेज वॉज लाइक, यहाँ पे एज वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे लाइक, अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब थर्ड देखिए बेटा, थर्ड इज द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। अगर बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर है ना कि सिमिली और मेटाफर क्या है, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, व्हाट वुड बी, द बुक वॉज ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द बुक वॉज लाइक, यहाँ पे वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। सिंपली हमने यहाँ पे लाइक ऐड कर दिया, ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट आंसर लिखोगे, ओके। अब नेक्स्ट इज हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी दैट ब्राइटेंड द डार्केस्ट डेज। अब ये हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, दोबारा सिमिली में। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर लाफ्टर वॉज अगेन लाइक अ मेलेडी दैट ब्राइटेंड द डार्केस्ट डेज, ओके। तो ये सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5th पार्ट, द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। अब यहाँ पे एज वर्ड दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये सिमिली है, हमें किस पे कन्वर्ट करना है, मेटाफर में। तो ये क्या आएगा, द माउंटेन, ये हमें लिखना पड़ेगा इसका आंसर। सो राइट डाउन
The mountain was a mighty God. ठीक है बेटा, बाकी सारा सेम आएगा. God watching over the valley below. Okay बेटा. Next 6. The night was like a velvet clock wrapping the world in mystery. ठीक है, was like मतलब ये सिमिली है तो हमें मेटाफोर में कन्वर्ट करना है अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? The night was a, यहाँ पे like को कट कर दो. ठीक है, was a velvet clock wrapping the world in mystery. तो ये सिंपल था, यहाँ पे आपने omit कर देना है like को. ठीक है, you have to cut this word like. तो ये सिंपली आपका कंपैरिजन बन जाएगा. The night was a velvet clock wrapping the world in mystery. 7. Her thoughts were like butterflies in a summer meadow. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल. Her thoughts were butterflies, लाइक को कट कर दिया. वर बटरफ्लाइज फ्लटरिंग इन अ समर मेडो. ठीक है, ओके बेटा. अब बेटा ये ना अब आपके लेटस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं. ये मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए. इट मीन्स आपको थॉरो होना पड़ेगा चैप्टर के साथ, चाहे वो पोएम है चाहे लेसन है. ठीक है, तो इसमें आपको जो लाइंस दी जाएंगी वो आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy glue. Select the phrase which shows the physical expression of the king's emotional state. कौन सा फ्रेज होगा बेटा? When he was feeling down emotionally, he was not happy, he was very sad. तो वो पहली लाइन ही होगी. He flung himself down in low despair. तो जो फ्रेज है जो शो कर रहा है कि फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट, दैट इज योर फर्स्ट लाइन. ओके, सो योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. ओके. Second, why does the poet use the word low before despair? despair का मतलब यही होता है कि सैड फीलिंग है ना, लो फीलिंग. तो वो कह रहे हैं कि लो वर्ड को despair के आगे क्यों लगाया गया, why? ठीक है, तो वो कहते हैं कि the poet uses the word low before despair to emphasize कि वो ज़्यादा डीपली बहुत परेशान था. ठीक है, डेप्थ ऑफ किंग ब्रूस सैडनेस एंड होपलेसनेस. ठीक है, उसको कोई होप नहीं थी, मतलब ज्यादा दुख दिखाने के लिए. ठीक है, दैट वो सीरियसली बहुत दुखी था, परेशान था. ठीक है, इट हाईलाइट्स दैट ही वाज नॉट जस्ट फीलिंग डिस्करेज. ये नहीं था कि वो सिर्फ फील कर रहा था, बट ही हैड रीच्ड अ डीप इमोशनल एंड मेंटल लो. वो मेंटली भी लो फील कर रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, ऑलमोस्ट गिविंग अप कंप्लीटली. ठीक है, सो व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर? तो हम इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट. ठीक है, सो लेट अस राइट टू emphasize the depth of king's sadness
and hopelessness. ओके, वो जो किंग की डेप्थ ऑफ किंग सैडनेस और होपलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है, इट हाईलाइट्स that he was not just feeling discouraged, but had reached a deep emotional and mental low, almost giving up completely. Okay beta, if you feel that there is that you need more space or you are not able to write your answer here, you can add one sheet. Okay, तो यहाँ पे आप एक sheet paste कर सकते हो और over that you can write it very beautifully. Okay बेटा, so see the third question. Choose the correct option to complete the sentence in the line and after a while he pondered there. देखिए बेटा line, and after a while he pondered there. The word pondered means, pondered का मतलब क्या है यहाँ पे? Thought, मतलब उसने सोचा. Thought. B option is the correct answer. Fourth question देखिए बेटा. Choose the correct option from the words given in the brackets. The phrase silken filmy glue creates an image of something that is very delicate and soft. पता है ना बेटा, silken, silk आपने देखी होगी, that is very soft, delicate. तो very delicate and soft. ओके बेटा, ठीक है, देख लीजिए बेटा जल्दी से, सारा देख लीजिए एक बार. We have solved the first question. So now let's do the second. When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, but up the insect went once more. Ah me, it's an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? Choose the correct option to complete the analogy. Toil hard. और कौन सा होगा? Roll, tumble. Roll, tumble. Okay, we have completed this. Beta, come on page number 22. List any two characteristics of the spider highlighted in the line, but up the insect went once more. तो बेटा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम वही वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, परसिवेरेंस, और दूसरा कौन सा था, डिटर्मिनेशन. एक बार ये वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद कर लो. ओके, डिटर्मिनेशन, नेवर गिविंग अप. ठीक है, इवन दो यू face so many struggles or so many failures until you succeed. Third question, choose the correct option to complete the sentence. The expression "ah me" in the extract indicates a sense of stress. Okay.
Fourth, complete the sentence with an appropriate reason. Readers are able to relate to this extract because जो रीडर्स है वो कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम भी तो रिलेट कर सकते हैं ना कि ये चीज़ हो नहीं रही हमसे, हम अच्छे नंबर नहीं लेके आ रहे, हम इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये थोड़ा ना कि हम छोड़ देंगे पढ़ना. वी कैन नॉट लीव द स्कूल और सिचुएशन, हम भाग नहीं सकते उन सिचुएशन से, ठीक है. तो कह रहे रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ struggles. Okay, real life struggles where people face failures but we must keep trying. Okay, again those words with perseverance and determination. Okay, to achieve success. Okay beta, these question answers we will be doing in our notebook. So ये तो बहुत सिंपल है, ये हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी. Write the opposites of the following words taken from the poem. Up, down, fast, slow, glad, sad, win, lose, succeed, fail. Okay बेटा, जल्दी से देख लीजिए बेटा एक बार. वी हैव कंप्लीटेड दिस. मेन वर्ड्स आपने याद रखने हैं पूरी पोएम में, परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन. इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है. वी हैव डन दिस. सो हमने ये भी कर लिया. ओके, मेटाफर, सिमिलीज. ओके, सी ये पूरा देख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है. Then on this page, then this. Okay, then on this page we have solved the exercise. क्वेश्चन आंसर्स की हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे, ठीक है. डू लाइक एंड शेयर बेटा. सब्सक्राइब ऑल्सो दिस चैनल. ओके, एंड मेन मोटो क्या होना चाहिए? नेवर गिविंग अप. ओके, परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आप सब में. सो थैंक यू एवरीवन once again. I hope you have a very good day ahead.